सो मैं अभी रैंडमली कुछ लोगों के नाम लूंगा और उनको बस आंसर देना है, शॉर्ट में देना है। और ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको पूरा करेक्ट ही देना है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं हो रहा है तो आप हिंदी में भी बता सकते हो, ठीक है। लेकिन बात करना है। शुरुआत में हम इंटरैक्ट करेंगे 10 मिनट, और आ, उसके बाद में फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Why I disconnected at the end of session and again I missed. Oh, okay, okay, okay. Last one topic. Oh, sorry. Prashika, we will be uploading the yesterday's lecture on YouTube very soon. After this class, I'll be uploading that. So you can go through that. Okay. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, ओके 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 ओके, इफ दैट इज फाइन देन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर पे मूव होने के पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आंसर चाहूंगा। लेट्स स्टार्ट विथ वर्षा। हाय वर्षा, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Sorry, Jay. हाँ, ओके। नो, इट्स ओके, बट ठीक है, मतलब जय ही बोलो, अच्छा लगता है। तो वर्षा जी, मैंने क्वेश्चन किया था कि व्हाट डू यू डू इन Yes. योर फ्री टाइम। In my free time, I watch video related automobile sector, which is my field. ओके, सो यू आर Cars, वर्किंग इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। ओके yes, I got Tamura. ओके ओके, फाइन। वेर इन पुणे? Yes, sir. ओके 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 ओके, सो इन मोस्ट ऑफ योर फ्री टाइम you do your work related to Only automobile. watching, only watch, yes, my field related videos and whatever stuff. Okay, 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 okay. What do you do in your work? I mean, what kind of work do you do in the automobile sector? What, Varsha? I'm a salesperson in there. Okay, 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 okay. So you are in sales. Okay, fine. Okay, okay, Varsha. Yes. Thank you very much. Yesterday I had a conversation with Sanket, so that's why I know a little bit Okay. about you. Okay, okay. Thank you, Varsha. Okay. Thank Okay. you. Okay, next, Uh, Prachi. Hi. Hello, sir. Good morning. Very good morning, Prachi. Sir, this is my first lecture. Yeah, yeah, yeah. I'm seeing you for the first time, and that is the reason why I'm calling your name. Yes, yes. Thank you, sir. Yeah. So basically, sir, my hobby is writing poetry or diary. So in Okay. my free time, I used to write some poetry or hobby. Okay. Okay. What kind of poetry do you write? I mean, the Hindi wali Sir, poetry or English wali? no, sir, Hindi. Hindi wali. I Okay. used to write in Hindi. Okay. 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 Fine. And where Thank are you, you sir. from, Prachi? I am from Wardha, Maharashtra. Okay, you are from Varda. And how you got to know about Panchashil Academy? Sir, my friend is मतलब वो क्लास कर रही थी हर रोज. Okay. सो मैंने उसको बोला कि मुझे भी ऐड करने के लिए बोले तो उसने ऐड किया. Okay, 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 okay. Fine. Fine, Prachi. All the हाँ, best. We welcome you to Panchashil Academy. ठीक है. थैंक यू, सर. Okay. Okay. So Prachi, you spend most of your time or your free time in writing poetry, right? यस, सर. Okay, okay, okay. Prachi, happy to have you. Thank you very much for joining. थैंक यू, सर. Okay. No, so it is a rule of our class to not call me as sir. Okay. Okay, so you can call me Jay, Prachi. Okay. यस, यस. गॉट इट, Okay. सर. Arre. Again, sir. Okay, fine. Next, Prashika. Hi, Prashika. Good morning.
Good morning, Jayada. Yes. So, what do you do in your free time, Prashika? Actually, I don't have any free time Oh, because from 8 to 9, our our English spoken classes, and 10 to 5, my college. This is my college time. okay, So okay, okay, okay. after 5, I come to home and complete my um, assignment work, class work, homework, whatever, Okay, and watching okay, TV, and watching shorts on YouTube. okay, okay, okay. Okay, same, Prashika. My entire day Thank is you. also busy, and then when I come from my work, then I spend my time. I don't know how much countless time I spend on shorts. I don't know Yeah, same, this how I got this habit of watching shorts. So same. Yeah. okay, Prashika, thank you very much for Actually, ha ha ha. Yes, I want to share something with you yes. Please do. uh, about yesterday. Yesterday was my first class, Mm-hmm. and I have subject communication skill. Okay. दादा हे हॅव बरोबर आहे का माझं म्हणणं? मी पास्ट बद्दल बोलत आहे. हॅव येणार त्यामध्ये? Ha. I had. I had, okay. Then our English, our communication skill Mm-hmm. teachers are coming, and they all time talking in English Okay. all the time. Then they ask one question to Mm-hmm. everyone. Are you able to speak in English? Mm-hmm. Are you able to speak in English? Everyone said, Mm-hmm. yeah, I am able to speak in English, but not in fluent. Mm-hmm. Some are said, yeah, we can speak in English in fluent. Mm-hmm. Then it's my turn. I Mm-hmm. said I able to speak in English. I understand English, but not to speak in fluent. Mm-hmm. Then they go back and Okay. said one thing. You are uh, you are uh, you are गेटिंग दादा गेटिंग येणार की त्याच्यामध्ये गॉट येणार? मला Mm-hmm. असं म्हणायचंय की तुम्ही लहानपणीपासून इंग्लिश शिकत आहे. Mm-hmm. हा सेंटेन्स कसा येणार? We have been learning English from our childhood. Our childhood from first to 12th. Mm-hmm. But but you are not able to speak English. Why? अच्छा, म्हणजे सरांनी तुम्हाला असं म्हटलं की तुम्ही लहानपणापासून हा हा ओके. हा फर्स्ट पासून तुम्ही 12th पर्यंत इंग्लिश शिकत आहे पण तुम्ही बोलत का बरं नाहीये? हम्म. And I think the reason behind that teachers from first to 12th, teachers come to class, and they teach English subject, bio, chemistry, physics. हा These all subjects are in English. But एक्झॅक्टली. whenever they came to class and they read the sentence, this since sentence is blah 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 whatever, and when they त्याला काय म्हणणार, टीच. समजवतात. हा When they teach this topic, they हम्म. teach in English, they teach in Hindi or हिंदी Marathi. येस. Yeah, yeah. They don't teach this all topic in easy. It's easy या. English language, हम्म. and we are all facing this from first to 10. They एक्झॅक्टली. said, "Are you getting? Are you getting?" We said, "Yes." Are you understand? We said yes. Because of that, we are only in yes, between yes and no. गुड पॉइंट. दादा मी ते बोलणार होते त्यांना पण म्हटलं माझा फर्स्ट दिवस आहे, मी जर जास्त बोलली तर
तर ते मला टार्गेट करू शकतात किंवा माझे इंटरनल काही करू शकतात. दॅट्स वाय मी काही बोलली नाही त्यांना, बट मला हे तुमच्यासोबत शेअर करायचं होतं. नाही ही एक हा प्रसंग. नाही हे बरोबर आहे, ही प्रॅक्टिकल गोष्ट आहे आपल्या इंडियन एज्युकेशन सिस्टमची, की आपल्याला अँड ऍट द एंड इफ वी लुक अबाउट सीबीएसई स्टुडंट, जर आपण सीबीएसई स्टुडंटला बघत आहोत, तिथले टीचर्स ऑल टाइम टॉक इन इंग्लिश, दे टीच इन इंग्लिश अँड दे कम्युनिकेटेड विथ ऑल इन इंग्लिश. अँड अवर स्टेट बोर्ड, नॉट स्टेट बोर्ड, जरुरी नाही की स्टेट बोर्ड मध्ये प्रत्येक स्कूलमध्ये असं होते, बट मोस्ट ऑफ दी स्कूल, स्टेट बोर्ड स्कूल, बरोबर दे आहे. टीचिंग इन दिस वे. दे हो बरोबर कम टू क्लास, they read the topic and they explain. एक्झॅक्टली ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं वैसा एक्झॅक्टली होता द है. This द is क्वालिटी ऑफ टीचर वी हॅव इन इंडिया इज रियली बॅड. that's why we are not able or we are not speak fluent. My sister only maybe she is 12 years. ओके ती म्हणजे ती जेव्हा 10 ते 12 वर्षाची होती, शी कॅन, ती खूप फ्लुएंट बोलते इंग्लिश, कारण ती शी बिलॉंग फ्रॉम सीबीएसई स्कूल. ओके या अँड मी 16 ते 17 वर्षाची आणि आय कॅन स्पीक इंग्लिश. सो दिस इज शेमलेस थिंग फॉर मी. No. Let me add one thing to this. Prashika, it is not shameful. Actually, we have not been given the opportunity. Actually, जेव्हा आपण स्टेट बोर्ड Yeah. मध्ये किंवा मराठी मीडियम मध्ये शिकतो ना, तर तेव्हा आपल्याला ऑपॉर्च्युनिटी नाही मिळत. आपल्याला ना दाबण्याचा प्रयत्न केला जाते लहानपणापासून, येस की नाही येस म्हणजे करेक्ट. म्हणजे तुम्हाला तुमचे, जर तुम्ही काही बोलले तर तुमचे टीचर तुम्हाला रागवतील. ठीक आहे. येस किंवा मग जर तुम्ही आता तू जसं सांगितलं की तू जर काल बोलली असती त्यांना काही, तर मग ते तुला हा टार्गेट केले असते. तर हे जे आहे कॉमन हा कॉमन कॉमन थिंग आहे इंडियन एज्युकेशन सिस्टम मध्ये, हा की जर तुम्ही काही केलं नाही तर मग टीचर्स तुम्हाला टार्गेट करतील. इथे आपल्या स्टेट बोर्ड मध्ये तुम्हाला खूप कमी टीचर्स मिळतील जे इंग्लिश मध्ये बोलतात, किंवा इंग्लिश मध्ये बोलणं तर खूप दूरची गोष्ट, पण ते एक्सप्लेन पण खूप चांगल्याने करतात. असे खूप कमी टीचर्स मिळतील स्टेट बोर्ड मध्ये. हा आणि जेव्हा आपण मराठी बरोबर मीडियम आहे. मधून येतो ना, आपल्याकडे ऑपॉर्च्युनिटीज नाही राहत. आणि हे जे आपण पंचशील अकॅडमी जे केलं आहे, जे मी इनिशिएटिव्ह घेतला आहे ना प्रशिका, हे अशा स्टुडंटसाठी आहे येस ज्यांच्याकडे आजपर्यंत ऑपॉर्च्युनिटी नव्हती. आणि मला खूप लोक विचारतात की तुम्ही फ्री मध्ये एज्युकेशन का बरं देता, तुम्ही चार्जेस का बरं नाही घेता. 300-400 रुपये तर कोणी पण भरू शकते. पण माझं म्हणणं असं आहे हा की मला शिक्षणाची जी गोष्ट आहे ती पैशामध्ये मोजायची नाहीये. ठीक आहे. आतापर्यंत मी बरोबर. 200-250 विद्यार्थ्यांना शिकवलं आहे. जर मी त्यांच्याकडून फीस घेतली असती तर म्हणजे माझ्याकडे पैशाची कमी नसती. मला आता पण पैशाची कमी आहे, पण मी कधी पैशांचा विचार नाही केला. मी फक्त हा विचार करून चालतो की जसा तुझा प्रसंग आहे ना प्रशिका, तसेच प्रसंग इथे बसलेले सर्व विद्यार्थ्यांचा आहे. हा सर्व विद्यार्थ्यांनी ते फेस केलं आहे. आणि मला असं वाटते की हे जे आहे, आता आपण अशा वयामध्ये आलो की आपल्याला आता रिफ्लेक्ट करता येते मागे, की नाही यार, आतापर्यंत जे आम्हाला सांगत होते ना ते फक्त एक म्हणजे आम्हाला दबावात ठेवण्याचा प्रयत्न केला एज्युकेशन सिस्टमने आमच्या. हा दबाव म्हणता येईल, किंवा ज्यावेळेस आपण क्लासमध्ये असतो, एक टॉपर असते, एक स्टुडंट असते, तिला बोलता येते, शी एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, अँड ते टीचर तिलाच बोलायला लावतात, स्टँड अप, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हॉट एव्हर हर नेम, अँड कम टू स्टेज अँड टेल अबाउट, दे डोंट गिव्ह चान्स एनी अदर पीपल. ऑपॉर्च्युनिटी, त्याच्याच मुळे म्हणतो मी हा की ऑपॉर्च्युनिटी. ते अपॉर्च्युनिटी नाही देत आपल्याला. तुम्ही जाऊन बोला, तुमचं चुकेल तरी चालेल. हा बरोबर आहे. ते एक आहे, म्हणजे ते प्रॉब्लेम आहे इंडियन एज्युकेशन सिस्टम मध्ये. पण आता ती तुला समजली ती खूप चांगली गोष्ट आहे. मला हे समजायला खूप हा जास्त वेळ लागला होता प्रशिका. आणि ते तू स्वतःमध्ये रिफ्लेक्ट केलं तर तुला हे समजून गेलं असेल की आता जे काही करायचं आहे ते आपल्याला करायचं आहे. आणि इंजिनिअरिंग मध्ये सुद्धा मी तुला सांगणार,
मी पण खूप चांगल्या कॉलेजमध्ये होतो इंजिनिअरिंगच्या. माझे इथे क्लासमेट्स पण आहेत. पण आमच्या कॉलेजमध्ये तसं काही शिक्षण नव्हतं, मी तुला सांगतो. आमच्या इथे जे Okay. काही थोडेफार स्टुडंट्स होते ना, ते खूप चांगले शिकवत होते टीचर्स पेक्षा पण. तर जे इंडियन एज्युकेशन हा. सिस्टम आहे ना, ही खूपच बेकार आहे. जे म्हणजे आपल्या मिडल क्लास लोकांसाठी आणि लोअर मिडल क्लास लोकांसाठी आहे ना, खूप बेकार शिक्षण आहे. Right. तर म्हणून ते आहे ती प्रॉब्लेम. तर छान झाला तुम्ही तुझा एक्सपिरियन्स शेअर केला. थँक्यू व्हेरी मच प्रशिका. Thank you. आणि हा, आणि छान वाटलं ऐकून तुझा एक्सपिरियन्स. दादा मी जिथे जिथे चुकते माझं सेंटेन्स जिथे चुकते तिथे प्लीज मला करेक्ट करत चला. नाही ओके इथे हॅड नाही इथे हॅव आहे इथे हे नाही ते आहे. ओके कारण मी याच गोष्टीमध्ये कन्फ्युज होते की कुठे पास्ट टेन्स मध्ये गॉट लागते तर मग प्रेझेंट मध्ये काय गेट लागते तेच. मग गेटिंग लागते. हा मी आजचा तिथे जो कन्फ्युज टॉपिक आहे होत आहे. आपला तोच आहे प्रशिका. ओके 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 चालेल चालेल. ओके ओके. ठीक आहे. थँक्यू थँक्यू. प्रशिका. थँक्यू. ओके, हु वुड लाईक टू गो नेक्स्ट? वेलकम. हाय जयेश. सो द क्वेश्चन वाज अभी की अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है. सो द क्वेश्चन वाज कि व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? सो साहिल, हाय साहिल. Hello. Yes साहिल. Hmm, in my free time, I go for walk, edit photos, and watch YouTube Shorts or Instagram Reels. And mostly, I learn about new tips and tricks of edit photos and albums. Of Edit photos and okay, albums. photo editing. So I think Hmm. watching the shorts of YouTube is a common habit between all of us. Okay. Okay, Sahil, thank you very much. Thank Okay, you. who would like to go next? Jayesh, Vishal, गुड yes, मॉर्निंग जय भाऊ. Akash. Good morning, Jayesh. बाकीच्यांना बोलू द्या. हा हा. नाही, कोणी पण बोला, चालेल, काही हरकत नाही. Yes, I can. Okay, so it will be better if you raise your hands. Yes, Akash. Hi, Akash. हॅलो दादा. हाय आकाश. मी मराठीत बोलायला कम्फर्टेबल करेल. हा, चालेल. तुम्ही मराठी, हिंदी, तेलुगू कशामध्ये पण बोला. मी परभणी डिस्ट्रिक्ट मधून येतो, महाराष्ट्रामधून. ओके. छोटस गाव आहे माझं. तर त्या गावाकडून मी तालुक्याच्या ठिकाणी माझं ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे. तर मी ग्रॅज्युएशन मध्ये इंग्लिश हा विषय मला लहानपणापासून आवड आहे इंग्लिश बोलण्याची. मला कळते, जे सगळे बोलतात ते मला पूर्णपणे कळते, पण मला बोलता येत नाही. म्हणजे ते ओके. कसं जमतच नाही. काय भरपूर वेळेस भेटतच नाही. मी तुम्हाला मेसेजही केला होता, तुम्ही माझा मेसेज स्टेटसला ठेवला होता बहुतेक. ओ हा. अच्छा, तू आहे तो. ओके. हा. तर मी माझ्या म्हणजे फर्स्ट जनरेशनला नाही, तर आमच्या घरामध्ये कोणी सांगणार नाही आम्हाला की असं करा, तुम्ही असं करताल म्हणून. नाही, ठीक आहे. तुम्ही मला कनेक्ट केलं. आता आपण इंग्लिश लर्निंग शिकून घेऊ. काही खूप जास्त कठीण नाही आहे आकाश. हो, मी म्हणजे ग्रॅज्युएशनला इंग्लिश हा सब्जेक्ट घेतला होता, इंग्लिश लिटरेचर, कारण की मला इंग्लिश बोलता येईल म्हणून. पण तिथे शिकवण्याची पद्धत बरोबर नसल्या कारणाने मला ते तेच आहे. ऍक्सेस ते मिळाला आम्ही नाहीये. आता सध्या तेच डिस्कस करत होतो मी प्रशिका सोबत पण. इंडियन एज्युकेशन सिस्टम म्हणजे, आणि हे तर फक्त आम्ही ऐकलं प्रायमरी मी एज्युकेशनची त्यांचं. गोष्ट करत होतो. पण आता तू जेव्हा सांगत आहे की इंग्लिश लिटरेचर शिकवणारे सुद्धा इंग्लिश मध्ये नाही बोलत आहेत, तर ते मला ऐकून वाईट वाटतंय. हो. ठीक आहे आकाश, हे बघ, आता तू डेली क्लासेस जॉईन कर, ठीक आहे. आणि या कोर्स मध्ये ऍट द एंड ऑफ दिस कोर्स तू स्वतःला ना हॅबिट तू बनवून घेशील इंग्लिश स्पीकिंगची. इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट रॉकेट सायन्स गाईज. काही रॉकेट सायन्स नाही, काही नाही. फक्त तुम्हाला ना बेसिक गोष्टी माहिती राहिल्या पाहिजे. हे बघा, एक सांगतो मी तुम्हाला माझ्या पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा सभी को कि इंग्लिश ना 100% अगर है तो आप उसका अगर 20% भी अगर सीख लो जितनी इंडिया में बोलते हैं, तो आप यू कैन सर्वाइव, यू कैन इजीली सर्वाइव. तो हमको ना सिर्फ वो 20% पर ज्यादा फोकस करना है पहले. बाद में फिर हम वोकेबुलरी करेंगे, ईडीएम्स करेंगे, फ्रेजेस करेंगे, परफेक्शन करेंगे.
फिर हम सीख सकते हैं। लेकिन मोस्टली हमें फोकस करना है उस 20% पर जहां पे हम कुड, वुड, शुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, उसके बाद में फिर पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो जो है जो इंपॉर्टेंट है ना वही देखेंगे। और ये सीखने के लिए ये हम बचपन से सीख रहे हैं, लेकिन हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, कभी नहीं किया। हमने सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन कहा किया आंसर लिखने में, जो कि गलत था। ठीक है, तो अभी हम इम्प्लीमेंट डायरेक्टली करेंगे। हम यहाँ पर हम इस क्लासेस में हम सबसे पहले ग्रामर देखेंगे और ग्रामर का हम यूज करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डेली असाइनमेंट्स करो। ठीक है आकाश, तो मुझे मुझे ऐसा लगता है आकाश कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, इंग्लिश बात करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आप, मैं जो बोल रहा हूँ, आप असाइनमेंट्स डेली करो। आपके कुछ क्लासेस छूट गए होंगे तो आप यूट्यूब पे देखिए, ठीक है, हमारे क्लासेस, और बस प्रैक्टिस करते चलो। और शर्माओ मत हिंदी में बात, इंग्लिश में बात करने के लिए। ठीक है आकाश, जैसी भी इंग्लिश आती है ट्राई करो। ठीक है, ओके दादा. ओके 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 आकाश, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। Hi, Jim. हाय 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 प्रिया। Yes, and good morning. या वेरी गुड मॉर्निंग। In my free time, I always want to do English classes on YouTube. ओके, Yeah, I want to ask you that which novel is good for beginners? विच Novel, नॉवेल? ओ ओके 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 ओके, नॉवेल, आर यू yeah, I did फिक्शन? search for novel, but I have a doubt that Okay, Farming. for beginners, I would recommend you to read Sudha Murthy's. What is the name of that book? I heard about that. Voice and Satish otherwise. Gujranwala. What? Wise and otherwise, Yeah, and yeah, Wise and Otherwise by Sudha Murthy. Okay, thank you. Yeah, yeah. And I want to share you that yesterday I have a client meeting Okay. with uh, America side, I guess. Okay, okay, okay. His name was Dusan, yeah. Okay. So seriously, मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता था पहले. And when I was joined in TCS, I'm in zero level. I have a zero level spoken. I mean to say, yeah. Yeah. But after that, I should try. मेरे को लगता था कि मुझे ट्राई करना चाहिए. I thought I should try. Yeah. I thought I should try. But मेरे को थोड़ा शर्म आता था कि बोलना चाहिए या नहीं. Then I was trying to learn English from YouTube. Okay. That if anyone are from Telugu side, then Vashishta 360 on YouTube. Okay. Yeah, I learned from there, and after that, yesterday they in my meeting, all are from other country. Okay. So we have to speak in English only. Okay. It was good. I also speak in English. I also speak in English, and it was. And they said that you are from India, so most of the people have problem with that. So don't. I mean to say, don't hesitate or don't. Exactly. Yeah. Exactly. That's a great point. Thanks for sharing your personal story, Priya. And yes, continue. And so don't hesitate to speak in English, whether it is wrong or right. If you learn to speak, then you will only I mean to say, your stage will increases Exactly. in English language. Exactly. Yeah. Okay, so we have to, I mean, many of the people are sharing their experiences,
So how they got to learn about I mean, spoken English. So it keeps me inspiring, guys. It keeps me Yeah, inspiring to do such मैं things. तो टाइम भी लिख नहीं पाती थी पहले, हाँ बट हाँ आफ्टर दैट ये अपने सॉफ्टवेयर जॉब में तो अपने को कोई भी चीज इंग्लिश में ही उनको अपना कुछ भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, भले वो इंग्लिश में ही कन्वे करना पड़ता उनको। बराबर है। अगर अपन पीछे हटे कुछ चीज के लिए, हमारे टीएल तक हमको समझाते हैं हाँ हाँ कि हाँ कुछ भी हो, गलत हो या सही हो, तुम अगर अभी से सीखोगे देन इट विल बेटर फॉर यू। एग्जैक्टली और इसीलिए इंडस्ट्री रेडी बनना होगा तो अभी से इंग्लिश बात तो करना पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है ना प्रिया? या या थैंक यू वेरी मच। सो व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, प्रिया? मैं आई एम डूइंग आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम यूट्यूब, दैट इज वशिष्ठा 360। ओके 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 फाइन या फाइन प्रिया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। Sir, can I speak something? यस 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 प्राची, व्हाई नॉट? Sir, as Priyadi asked about novel, so I recommend her to read Life Amazing Secret of Gaur Gopal Das because language is very easy and the book is very inspiring. Okay, Gaur Gopal Das. Okay, yes, you can refer that. Prachi, please type the name of book because it was not properly audible. Yes, So, Dada, yes. okay. Yes. Okay. Anyone else want to share? Okay, so I have received one. You know what, Jayda? This is my first time when I share my feelings without writing on paper or practice. Thank you for your support. Thank you very much, Prashika, for your kind words. I mean, मुझे पहले ऐसे लगता था कि यार शाम को लूं मैं क्लासेस, लेकिन अभी जब मैं मॉर्निंग में ले रहा हूं ना, तो ये ऐसा कुछ सुन के ना मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि मतलब मुझे ऐसे रैंडम मैसेजेस आते रहते हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर कि मैंने आपका यूट्यूब पर वीडियो देखा, हमने आपके एकेडमी पर कुछ क्लासेस किए थे तो ऐसा हुआ। कोई मुझे बताता है कि मैं क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा था तो वहां पे मुझे बहुत हेल्प हुई, तो वहां पे मुझे लगा कि नहीं हमने यहाँ से कुछ पढ़ा है तो वहां पर हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसी बात सुन के, और अच्छा लगता है कि मॉर्निंग में इतना अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है, मुझे ही नहीं आपको भी, सभी को। ओके जयेश, नाउ यू कैन गो अहेड। Good morning, Jaibu. गुड मॉर्निंग। In my free time, I watch YouTube videos regarding geopolitics, our data science course, ओके and the stand-up comedians. Not very much, but I love to watch geopolitics videos. And one of the most famous channel, Think School, you can watch also. There are very interesting topics like pricing, implementation, the Vostro account system that currently coming in India also, and the other things also. ओके या आई डेफिनेटली try to manage my free time. Yeah, I know our schedule is very hectic and busy, but you can like that channel. Okay, fine, Josh. I'll definitely. Okay, things cool. Okay, Yes, sir. thank you very much, Jayesh. Okay, and then Sujata. Hi, Sujata. And then, Hello, sir. Good morning. very good morning, Sujata ji. Whenever I get free time, I like to read books or traveling for anywhere. Okay. Yes, Oh, where are you from, Sujata? I'm from Chandrapur. Okay, you are My from. village is Chandrapur. Okay, fine, Sujata. Okay, thank you very much. Happy to have you. Please join the classes daily. Okay. Sorry, sir. Yesterday is my exam, so I attend the lecture on YouTube. Okay, fine. Fine, Sujata. Okay. Okay, thank you very much. Okay.
Then Suraj, Vishal, Raman, Priya Dakore. Hi हॅलो Priya. रे भाऊ. Hello. मी प्रशांत जे आहे आणि मी जॉईन केला याच्या विशाल डहारेच्या याच्यावर. तुम्ही कोण बोलत आहेत? मी प्रशांत बेंदेवार. अच्छा. ठीक आहे प्रशांत. तर हा माझा मित्र आहे, पॉलिटेक्निक करत आहे इथं प्रियदर्शनी मध्ये. माझा रूम पार्टनर. त्याला जॉईन करायला सांगितलं होतं. ओके ठीक आहे. तू त्याचा नंबर मला पाठव, मी त्याला जॉईन करायला लावतो. ठीक आहे. हो. ओके. सो आता अनम्यूट केलंच आहे तर सांगून दे, व्हॉट डू यू डू इन युअर फ्री टाइम? ओके. गोपाल. हाय Gopal. Hi, sir. When I have free time, that time I watch Facebook video. On Facebook, Indian Idol singing videos, and sometime I watch YouTube. Just kind of comedy, Marathi comedy, and sometime I watch means Big Boss Okay. on Wood. That type video I watch. Okay, Gopal. Thank you. Next, Arju. Hi, Arju. Hi, good morning. Very good morning. Actually, even I don't have free time because 8 to 9, even I joined this class. Last 2 days I was unable to join because I was in hurry. Okay, fine. Daily I go to my Kingsway Hospital for dialysis class, and after coming home, I feel tired. Okay. That's why. And of course, I like to watch reels on Instagram. Yes. As I said, most of us are having the common thing. Watching reels. And and almost times म्हणजे स्टेटस वगैरे बघण्यात पण वेळ चालला जातो. ओके ठीक है आरजू. थैंक यू वेरी मच. ओके. एनीवन एल्स? हेसिटेट मत करो भाई. देखो अभी हम 8:40 हो गए हैं. मैं 20 मिनट्स में सब कुछ कर लूंगा. हाँ रमन सर, गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. Okay. Hello, everyone. Good morning. Yeah. Good morning. I am the member of Bharatiya Bauddha Mahasabha. So I like work, missionary work, preach Buddhism. That's why I visit. I live at Ballarsha. I visit everyone and preach the Buddhism. That's why I read the books and share the Buddhism. So that's why I am busy. Okay. So you spend most of your time working for Buddhism. Yes, sir. Very nice, Raman sir. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for giving your time to our community. Okay. Rutik. My pleasure. Rutik ne. Thank you Raman sir. Next who was there? Priya Dakore. Hi Priya. Last one. After Priya, I will start the explanation part. Yes. Good morning, sir. Yes. No sir. No good morning. I am not accepting your good morning then. Good morning, Jai bolo. Good morning, Jay. So where I live, that is slum area, and in lockdown, there are so many students who didn't taking their education. So we have started free online classes, free offline classes for them in Buddha Vihar. Wow. Wonderful. Very nice. And where is it?
Siddharth Nagar. Amravati. Yes, Siddharth Okay. Nagar, Amravati. And it has completed now 7th month. And we also gave that tuition classes name as a mission education. Okay. And whenever that class is completed, whenever I took their lecture, I also teach them grammar Oh, and maths also. wonderful. Very nice, Priya. I would be needing your help. I'll be coming to Amravati to see your academy. Okay, sir, please visit it. Yeah, definitely. Actually, yes. Last time itself, I planned to come there, but due to some reasons, I cancelled my plan because there are so many social activities happening in Amravati. Yes, sir. Yeah, so I'll definitely come to Amravati, Priya, to see your project. Okay, sir. Yeah, thank you. are invited for it. Okay. Yeah, And thank you very much, Priya. but it is not my free work, sir. I'm not taking my classes in free work. After that, whenever that class is completed, I play with that student games like Kho, hide and seek. Okay. So Okay, in very nice. play that. Very nice. We are having such a diverse community here. Like people who care about the education, who care about languages. So very nice. Okay, Priya, definitely I'll come to you. Okay, sir. Okay. Okay, so guys, I'm sharing my screen. So now we will start our class. Fine. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. Okay, so welcome to Panchashil Academy. This is our third lecture on English grammar. Okay. So today's agenda will be learn the present tense. ठीक है, हमने बहुत बार देखा है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो प्रेजेंट टेंस में मिस्टेक्स करते हैं. तो हम क्या करेंगे आज हम प्रेजेंट टेंस इतने सिंपल में सीखेंगे और इतने अच्छे से यूज करना सीखेंगे उसका कि हम फिर से कभी प्रेजेंट टेंस में मिस्टेक नहीं करेंगे. और मैं सभी को ये बोलूंगा कि आप ऐसा सोचो कि अभी तक तो हमने प्रेजेंट टेंस कितने बार सीखा है, कितना कचरा है हमारे दिमाग में टेंस को लेके. तो मैं अभी आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी कचरा है आपके दिमाग में वो सब निकाल दो, सब. अभी हम जो देखने वाले हैं, और किसी को ऐसा लग रहा होगा कि यार प्रेजेंट टेंस तो बहुत सिंपल है, ऐसा है वैसा है, तो प्लीज प्लीज वैसा कुछ मत सोचो. मैं प्रेजेंट टेंस आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, सिर्फ फिलहाल के लिए आपके दिमाग में जो कुछ भी था उसको डिलीट कर दो. ठीक है, आज का जो एजेंडा रहने वाला है वो हम सबसे पहले देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे और ये कुछ टाइप्स है. ठीक है, तो ये आज की क्लास का इंट्रोडक्शन है कि व्हाई डू वी नीड टू लर्न द टेंसेस. टेंसेस की आवश्यकता क्या है. दे हेल्प अस टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश करेक्टली. जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि इंग्लिश बात करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, सही इंग्लिश बात करना इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इसीलिए आज हम देखेंगे टेंस. टेंस का मतलब क्या होता है. टेंस हमें बताता है कि एक्शन का टाइम क्या है. व्हाट इज द टेल्स अस द टाइम ऑफ एक्शन, कि कब हुआ, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है, या फ्यूचर में होगा, या फिर पास्ट में चल रहा था. तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे आज. सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के मैं आपको सभी को ना एक मास्टर की दूंगा. मास्टर की का मतलब क्या होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सोचने के बाद में हमको वो फॉर्मूला नहीं आना चाहिए हमारे दिमाग में. मैं आपको एक मास्टर की बताऊंगा, वो मास्टर की आएगी तो आप आराम से टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो आपके सेंटेंसेस को. ठीक है, तो यहां पर मैं मास्टर की बताऊंगा आपको. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन इंग्लिश इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑन एक्शन दैट इज रेगुलर, ट्रू और नॉर्मल. जैसे हमारे पॉलिटिशियंस के वादे, ठीक है, वो क्या है, रेगुलर है.
उसके बाद में फिर डेज, मॉर्निंग्स, ये क्या है, रेगुलर है या फिर मंडेन है। मंडेन ये एक वोकेबुलरी वाला शब्द है रेगुलर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ट्रू या फिर नॉर्मल, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल सिर्फ ये दिमाग में रखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब कुछ ऐसा जो होते रहता है, या फिर वो एक नेचुरली ट्रू थिंग है, या फिर नॉर्मल चीज है, ठीक है। अभी ये जो कुछ फॉर्मूला है आपको देखकर लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये यहां पर कुछ लिखा है ब्रैकेट में, ये है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब क्या है कि सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो जब भी हम ये, मैंने आपको कुछ बताया था सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन आज हम करेंगे। तो सब्जेक्ट में ये देखिए, ये जो है आई, यू, वी और दे, ये कौन है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई मतलब हम क्या है सबसे पहले, ठीक है। बाद में फिर यू मतलब कौन है, सेकंड पर्सन, ठीक है। वी मतलब कौन है, मतलब हम लेकिन प्लूरल, हम है लेकिन हम 2 जन है, 3 जन है, ठीक है। उसके बाद में दे मतलब वो लोग 2 से ज्यादा है, ठीक है, या फिर 2 है। तो ये हो गया सब्जेक्ट कि आई, यू, वी और दे क्या है। आई मतलब, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये जो है ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब ही मतलब वो है ना, तो वो है, तो वो हमारे लिए कौन है, वो थर्ड पर्सन है वो हमारे लिए। शी मतलब कौन है, मैं अगर किसी और लड़की के बारे में बात कर रहा हूं तो वो कौन है मेरे लिए, थर्ड पर्सन है। इट, अगर उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं तो वो मेरे लिए कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। अगर दे होता था तो फिर क्या होता था, थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है। तो जब भी हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो हम लिखेंगे सिंपल वर्ब, लेकिन हम जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी और इट के बारे में बात करेंगे ना, तब हम एस लगाएंगे वर्ब के सामने, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले सेंटेंस क्या बन सकता है, आई स्पीक इंग्लिश एट होम। तो ये क्या बोलता है, ये हमें बता रहा है कि वो डेली कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, वो नॉर्मल है कि वो इंग्लिश घर पे बात करता है। आई स्पीक इंग्लिश एट होम। उसके बाद में अभी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर देखेंगे। मैं जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोई तो भी मेरे आगे बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम हमारे आगे कोई बैठा है उनकी बात करेंगे ना, तब हम एस लगाएंगे वर्ब में। तो यहां पर देखिए, इसीलिए हम उस लड़के की बात कर रहे हैं, उस लड़की की बात कर रहे हैं, या उस चीज की बात कर रहे हैं, तब हम एस लगाएंगे, ठीक है। तो ही स्पीक्स इंग्लिश एट होम, हम किसी और को बता रहे हैं कि हाँ भाई वो मतलब घर पे इंग्लिश पढ़ता है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ही स्पीक इंग्लिश एट होम, ही स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। आई थिंक सभी को समझा होगा। तो ये है एफर्मेटिव। अभी नेगेटिव बनाना है हमको ऐसा ही एक सेंटेंस नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव में हम क्या यूज करेंगे, हम नेगेटिव में कुछ ना कुछ नॉट या फिर डज नॉट या डू नॉट ऐसा कुछ लगाएंगे, तो वो हम अभी देखेंगे। ये जो है ऐसा ही है सारा कुछ, बस हम इसमें डू नॉट और डज नॉट लगाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये पूरा सेम है, सिर्फ यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब आ गए, ठीक है। तो यहां पर आई, यू, वी, दे जैसा था वैसे ही यहां पर ये जो है ही, शी और इट, ये क्या है, फिर से एक बार मैं बताता हूं कि ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। जब हम नेगेटिव चीजों की बात करेंगे तब हम स्पीक्स नहीं लगाएंगे गाइस, ठीक है, वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। आई डोंट स्पीक इंग्लिश एट होम, ये क्या है, एफर्मेटिव मतलब नॉर्मल सेंटेंस है, सिर्फ हमने यहाँ पे डोंट ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी और इट है, तो वहां पे हमने क्या किया, सॉरी, तो
तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सिर्फ डज नॉट लगा दिया, ठीक है। यहाँ का जो एस था ना, इस वर्ब का जो एस था वो हमने यहां पर डाल दिया डज में। इज इट क्लियर टू यू गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर। ओके, तो ये हाँ है, जय। हाँ तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है गाइस, ठीक है। सिर्फ आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर याद रखना है कि एस लगेगा, ठीक है। उसके बाद में ये है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क। तो वहां क्वेश्चन मार्क, जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना क्या, ही स्पीक इंग्लिश एट होम क्वेश्चन मार्क, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले वर्ब लिखेंगे, डज ही स्पीक इंग्लिश एट होम, यस। बाद में फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो जो इंटरोगेटिव है उसमें हम वर्ब्स पहले लिख देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिख देंगे, ठीक है। तो आई थिंक के सब कुछ समझा होगा, आई थिंक, ठीक है। अब ये थिंक को मुझे अगर प्रैक्टिकली देखना है तो मुझे, हाँ हाँ, यस, हाँ समझता है सर। समझा नहीं, ओके, कौन सा नहीं समझा? नहीं 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 समझता है, मतलब अच्छा, समझ गया समझ। समझ गया, ओके ओके। हाँ, तो अभी आपको समझा, लेकिन मुझे समझना चाहिए कि आपको समझा, इसलिए अभी हम क्या करेंगे, ट्राई बाय योरसेल्फ। तो ये देखो, ट्राई बाय योरसेल्फ के पहले एक छोटा सा कोट है जो मुझे अच्छा लगा। द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्वाइट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले बात करना बंद करो और काम करना शुरू करो, ठीक है। तो अभी काम करना शुरू करो। आपको क्या करना है, दो एफर्मेटिव, दो नेगेटिव और दो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करके, ठीक है। और मैं सभी को एक ये करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ में एक बुक रखो, नोट्स रखो, ठीक है। फिर से मैं एक बार ओवरव्यू दे दूंगा। ये देखो, सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन आएगा, जो आगे हमारे कोई आगे बैठा है और वो सिंगल अकेला है, अकेला, या फिर एक सिंगल चीज, या फिर एक लड़की या फिर लड़का, कोई भी। तो वह वहां पर हम स्पीक्स लगाएंगे, ठीक है। और उसके दादा बाद में, हाँ हाँ, साहिल, यह ऐड कैसे लगा, इंग्लिश एट होम, हाँ, ऐड कैसे लगा वहाँ? ओके। ये देखो, इंग्लिश एट होम, घर में इंग्लिश, इंग्लिश इन होम। ये देखो, इन और एट जो है ना, इसे हम प्रीपोजिशंस कहते हैं, ठीक है। तो इस पर ये भी एक बड़ा टॉपिक है इंग्लिश का। तो इन, एट और ऑन जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है। मैं ये एक्सप्लेन करूंगा साहिल आपको, ठीक ओके है। ओके, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने को थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, इसलिए। ओके। ओके, ओके साहिल, थैंक यू वेरी मच वैसे बताने के लिए। ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन 6 sentences guys. Hello, Jay. Could you show the slide of affirmative? Yes, yes, yes. uh, I'll help you to make affirmative. Affirmative means positive sentences.
Let me just check. If you want, you can take a reference from this PPT, guys. लेकिन बहुत इजी है ये. Okay. Try to speak in English. I want to learn English. He wants to learn English. I don't want to learn English. He does not want to learn English. Do I want to learn English? Does he want to learn English? Very nice. बहुत बढ़िया. I read a book at home. बहुत बढ़िया. I write a letter. ठीक है. I don't like tea. Okay. I don't know what you think about me. Do I write a letter? Does he swim? Does he swim? Swims नहीं आएगा. हमने ऑलरेडी डज लगाया है, तो ये जो एस है ना, ये एस नहीं लगेगा. प्रिया, ही प्ले क्रिकेट. ओके, ही प्लेज क्रिकेट, एस आएगा क्योंकि हम प्रिया देखो, अगर आपके सामने कोई बैठा है और अगर आप उससे बात कर रहे हो तो वो आपके लिए कौन है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर, तो वहां पे हम एस लगाएंगे, तो ही प्लेज क्रिकेट आएगा. उसके बाद में दे ईट कुकीज. ओके, इंट्रोगेटिव, डू यू प्ले क्रिकेट. ओके, डज ही ईट कुकीज. ओके, नेगेटिव, आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स. वंडरफुल. ही डज नॉट नो अबाउट स्पेनिश. ओके, हाँ, अभी आपने करेक्ट किया. ओके. आई प्ले गेम. दे डोंट नो इंग्लिश. ओके, ठीक है. प्रिया. ओके. प्राची, I write a book. She writes a book. Okay, fine. I don't write a book. ठीक है. She does not write a book. Wonderful. Do I write a book? Does she write a book? Fine. बहुत बढ़िया प्राची. साहिल, do you have any question? Okay. I read newspaper daily. Okay. He reads newspaper. Okay. I don't read newspaper. बढ़िया. He does not read newspaper. बहुत बढ़िया गोपाल, बहुत अच्छा कर रहे हो सभी लोग. विजय वर्क्स एट WCL. ही इट वर्क वेरी वेल. ओके, बहुत बढ़िया. दे रीच मुंबई. ओके. यू डोंट डू दिस. ठीक है. वी डज नॉट गो टू विहार. वी नहीं. थर्ड पर्सन, ये सिंगुलर, ये वाला सेंटेंस का मैं एक बार चेक करता हूँ. उसके बाद में दे डोंट रीड बुद्धा एंड हिज धम्मा. ओके फाइन, ये वाला ठीक है. दे डोंट रीड. वी डोंट गो टू विहार. डजंट नहीं आएगा. डज और वर्ब में जो एस है वो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा. ठीक है. शी want to go to picnic. She wants आएगा. प्रशिका, wants आएगा. क्यों? क्योंकि ऐसा सोचो ना कि आपके अगर आगे कोई बैठा है तो आपके लिए कौन है, थर्ड पर्सन है, और वो कौन है, अकेला है ना, सिंगुलर. तो इसीलिए एस लगेगा वर्ब में, एंडिंग में एस लगेगा. तो जैसे रीड्स, ही रीड्स इंग्लिश. ही प्लेज क्रिकेट. She does not play cricket. Play cricket. ठीक है. Okay, so as always. Okay, fine. Suraj, I walk alone on road. He sings a song. She runs fast.
दे लर्न्स नहीं, दे लर्न्स नहीं आएगा, दे वॉन्ट्स भी नहीं आएगा, दे वॉन्ट। गाइस, ये देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है वो समझना पड़ेगा पहले। आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, सूरज के थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होगा? आपके आगे बहुत सारे लोग हैं तो वो सिंगुलर तो नहीं होंगे। आपके अगर आगे एक आदमी बैठा